کے ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. لیگل ٹیم اور میاں شہباز شریف بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے. سابق وزیر دفاع خواجہ آصف کمرہ عدالت میں موجود ہیں. نون لیگی رہنما ایاز صادق، خواجہ سعد رفیق اور سابق وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی کمرہ عدالت پہنچ چکے ہیں. پروسیکیوٹر جنرل نیب احتشام قادر شاہ بھی کمرہ عدالت میں موجود ہیں، جبکہ لیگی رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی، خرم دستگیر اور سینیٹر مصدق ملک بھی کمرہ عدالت اس وقت پہنچ چکے ہیں. اسی پر بات کریں گے. فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ، بتائے گا کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں. 2 روز قبل سماعت ہوئی تھی اور آج کے لیے ڈیٹ فکس ہوئی تھی، اور آج ایک دفعہ پھر سے سابق وزیر اعظم نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کی سماعت کریں گے. ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس میں اس کیس کی سماعت ہوگی. یہاں پر اس وقت لیگی کارکنان کی بھی بڑی تعداد موجود ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے بھی سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. 3 بجے کا وقت دیا گیا تھا عدالت کی جانب سے کہ 3 بجے سماعت شروع کی جائے گی. ہم سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پہنچ چکے ہیں. ٹھیک ہے فرزانہ، 3 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا. آپ ساتھ ہی رہیے گا، سماعت کا ہی احوال جانتے ہیں. کورٹ روم کے اندر اویس کیانی موجود ہیں. اویس، کورٹ روم کے اندر احوال بتائیے گا، کیا مناظر دیکھ رہے ہیں؟ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ روم نمبر 1 میں موجود ہیں، کمرہ عدالت میں، اور یہاں پر اس وقت بہت سخت سیکورٹی کی وجہ سے جو ہے اس دفعہ آج رش جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے پرسوں کی بنسبت. اور اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کو تقریباً 10 منٹ ہو چکے ہیں کہ وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور شہباز شریف سے جو ہے کافی زیادہ مشابہت رہی ہے جو خواجہ آصف صاحب کی، اور اعظم نذیر تارڑ کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے بات چیت کی ہے. اور ان کے جو یہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو کافی دکم پیل کی وجہ سے یہاں پر جو ہے ان کو آنے میں کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے. اس وجہ سے انہیں اعظم نذیر تارڑ کو بھی کہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو دیکھا جائے، اور ان کو کافی انتظار کرنا پڑا. جو خواجہ آصف جو ہیں ان کے ساتھ ان کے کانوں میں جو ہے شہباز شریف نے جو ہے کافی دیر تک جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. اور اس وقت کمرہ روم نمبر 1 میں جو ہے عدالت میں یہاں پر موجود ہیں. یہاں پہ خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، خرم دستگیر، ایاز صادق اور ڈاکٹر مصدق ملک یہاں پر جو ہے موجود ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پارٹی کے جو دیگر جو عہدیدار ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں جو ہے یہاں پر کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ آج جو ہے سیکورٹی کے غیر معمولی جو ہے وہ انتظامات تھے. اور کسی کو بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو مین بلڈنگ ہے وہاں سے ہی انٹری جو ہے وہ دینا بڑا مشکل تھا. اور جب شہباز شریف جو 3rd فلور پر پہنچے تو آلریڈی وہاں پر کافی زیادہ جو ہے رش لگا تھا. ایک دروازہ جو اسپیشل کو جو یہ کورٹ روم نمبر 1 کا جو 3rd فلور پہ جو دروازہ ہے اس کو بند کیا ہوا تھا پولیس نے. اور جب شہباز شریف وہاں پر پہنچے تو پولیس اور کارکنوں کے مابین جو ہے عجیب قسم کی دکم پیل اور جو ہے وہ جھگڑا بھی دیکھنے کو ملا. اور شہباز شریف اسی کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ پہ رک گئے اور پھر بہت مشکل سے جو ہے ان کی انٹری جو ہے کورٹ روم نمبر 1 میں ہوئی ہے. اور اس کے بعد اب جو ہے میاں نواز شریف جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچ چکے ہیں، ان کا کمرہ عدالت میں آنے کا انتظار ہے. اور سماعت جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ شروع ہوگی. اور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتی جو عملہ ہے وہ بھی یہاں پر پہنچ چکا ہے، جبکہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں، امجد پرویز اور دیگر جو ان کی جو لیگل ٹیم ہے. ٹھیک ہے اویس کیانی، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. بابر شہزاد ترک نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بابر، آپ بتائیے گا کہ آپ اس وقت کورٹ روم میں موجود ہیں، کیا نواز شریف وہاں پر پہنچ چکے ہیں؟ اور ججز کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ ججز کورٹ روم میں آ گئے ہیں. دیکھیے، سابق وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے مرکزی دروازے سے چند منٹ قبل ہی وہ داخل ہوئے ہیں. اس وقت وہ کورٹ روم جو ہے اگلے 1 یا 1.5 منٹ میں 2 منٹ میں وہ کورٹ روم بھی پہنچ جائیں گے. سیکورٹی کے ان کے ساتھ سخت انتظامات آئے ہیں، دیکھنے میں آ رہے ہیں. کارکنان کی دھکم پھیل بھی ہے اور اس وجہ سے بھی ان کو مرکزی گیٹ سے اور مرکزی راستے سے کورٹ روم تک آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی آمد سے قبل سابق وزیر اعظم شہباز شریف بھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں. تاہم شہباز شریف کی گاڑی کو مرکزی گیٹ پر روک لیا گیا تھا اور شہباز شریف مرکزی گیٹ پر گاڑی کو پیدل جو ہے مرکزی گیٹ کراس کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت میں داخل ہوئے ہیں. اور نواز شریف سے قبل شہباز شریف جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود ہیں. کچھ دیر قبل سے دیگر لیگی جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھی، لیکن وہ نواز شریف
کے इस्तकबाल के लिए बाहर आई हुई है। नवाज शरीफ कमरा अदालत में किसी भी लम्हे जो है वो पहुंच जाएंगे। जी ठीक है बाबर, आप साथ ही रहिएगा। फरजाना, आप बताइएगा, जिस तरह आप बाकी हमारे नुमाइंदे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, बाहर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं? यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस और एसटी एहलकार के जो अजाफी दस्ते हैं वो भी तैनात किए गए हैं, जबकि कुछ देर कबल डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद एसएसपी ऑपरेशन के हमरा यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम तरह एंट्री पॉइंट्स का जायजा भी लिया गया था। जबकि सिविल कपड़ों में मलबूस भी पुलिस एहलकारों की तादाद यहाँ पर है, लेडीज पुलिस एहलकारों की भी बड़ी तादाद यहाँ पर है। हाई कोर्ट के अहाते में किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वो सहाफी भी अंदर जा सकते हैं जिनको हाई कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से बाकायदा तौर पर पासेज जारी किए गए हैं। खारदार तारें भी लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम है इस मौका पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से वो देखने में आए हैं, क्योंकि जो 2 रोज कबल जब नवाज शरीफ की इज्तिमा थी तो थोड़ी सी बदनज़मी देखने में आई थी। कमरा अदालत में गुंजाइश से ज्यादा अफराद हो गए थे। इस बार इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इस बात का भरपूर ख्याल रखा गया है और सिर्फ जो मुतल्लिका लोग थे उनको ही कोर्ट रूम में जाने की इजाजत दी गई है। ठीक है फरजाना, आप साथ ही रहेगा। वैस, आपकी जानिब आना चाहूँगी, आप बताइएगा कि इस वक्त कोर्ट रूम की क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त नवाज शरीफ का जो है वो इंतजार किया जा रहा है। गो कि अभी समात शुरू होने में जो है थोड़ा ही वक्त है, लेकिन जो नवाज शरीफ की जो कानूनी जो टीम है जिसमें अमजद परवेज, अपना आजम वजीर तारड़, अतार तारड़ और दीगर जो इसमें मौजूद हैं, वो अपने साथ जो केसेस के जो होमवर्क करके आए हैं, जो उन्होंने जो केसेस लाए हैं वो फाइल्स को जो है वो देख रहे हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो है वो अतार तारड़ जो है मौजूद हैं और उनसे जो है शहबाज शरीफ की जो है कंसल्टेशन भी जारी है। इसके अलावा जो है टॉप जो सबसे आगे का जो बेंच है इस पे हम देख रहे हैं कि तमाम जो सीनियर जो पार्टी जो लीडरशिप है वो इसमें यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो है वो नवाज शरीफ का वेट कर रहे हैं। और बहुत ही गैर मामूली जो है वो इस दफ़ा हमें कोर्ट रूम नंबर 1 में ही जो सिक्योरिटी भी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो पुलिस जो एहलकार हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जो परसों जो हियरिंग हुई थी उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोर्ट का जो तकद्दुस है, क्योंकि हर कोई जो है वो सेल्फी लेने के और फ़ोटो देने के जो है उसमें था कि उसकी जो है फ़ोटो बन जाए। उस वक्त हम देख रहे हैं कि जो 2 जो जजेस हैं जो जस्टिस और उनके साथ जो जज हैं अपना मियाँ गुल औरंगजेब, उनकी जो अमला है वो भी तकरीबन जो है वो कोर्ट रूम में जो है पहुँच रहा है और उनकी जो दोनों जजेस हजरात की जो कुर्सियाँ हैं उनको जो है वो सेट किया जा रहा है। जबकि तमाम जो यहाँ पे जो लेगी जो कारकुनान जो ओहदेदारान हैं, क्योंकि कारकुनान की जो है वो हमें बहुत कम तादाद नज़र आ रही है। यहाँ पर ज़्यादातर वकला हैं और लेगी ओहदेदार हैं जो कि कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंचे हुए हैं। उन सब की नज़रें जो हैं वो दरवाजे की तरफ हैं कि किस टाइम जो है वो नवाज शरीफ जो है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है पहुंचते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है और मियाँ शहबाज शरीफ भी जो है वो इंतज़ार में बैठे हुए हैं। उनके हमरा जो हैं वो ख्वाजा आसिफ हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो खुरम दस्तगीर और एहसन इकबाल और अयाज सादिक, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक यहाँ पर मौजूद हैं। वो तमाम जो हैं वो इंतज़ार में ही मौजूद हैं कि जो नवाज शरीफ का जो है वो किस टाइम इंतज़ार किया, किस टाइम उनकी जो है वो एंट्री होती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि परसों जो यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा जो कारकुनों की जो तादाद थी वो इस दफ़ा हमें नज़र नहीं आ रही और यहाँ पर तकरीबन जो लीगी जो अहदेदार हैं वो तकरीबन तमाम ही यहाँ पर वो पहुँचे हुए हैं अहम समात को सुनने के लिए। और सबसे अहम जो डेवलपमेंट है कि जो कैप्टन सफदर हैं वो भी आज जो है कोर्ट रूम नंबर 1 में पहुंच चुके हैं और कैप्टन सफदर जो हैं वो कमरा अदालत में आकर शहबाज शरीफ को जो है मिले हैं और शहबाज शरीफ ने जो है उठकर उनका जो है वो जो उनको वेलकम किया है। और कैप्टन सफदर जो हैं वो अब ख्वाजा आसिफ से भी मिल रहे हैं और कैप्टन सफदर को देखकर लेगी जो अहदेदार यहाँ पर जो बैठे हुए हैं उन्होंने भी उनके चेहरों पर मुसरत का इज़हार नजर आ रहा है। और ये सिर्फ हालत क्योंकि कैप्टन सफदर जो हैं और परवेज रशीद साहब भी पहुँच चुके हैं कमरा अदालत में और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इंटर हो चुके हैं कमरा अदालत में। कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है मियाँ नवाज शरीफ जो है वो आ चुके हैं और इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ के हमरा जो है साझेदार भी हैं। बाकायदा तौर पर जो एक इस्लामाबाद पुलिस के जो सीनियर जो एसपी हैं वो उनको जो है वो लेकर आ रहे हैं। तो ये सूरत हाल है और यहाँ पर जो है तमाम जो निजी जो अहदेदारान हैं
लीगी ओहदेदारान हैं वो उन वेलकम कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त कमरा अदालत में जो है पहुंच चुके हैं और उनको जो है उनसे मुसाफा किया जा रहा है, वो खुद कर रहे हैं। जो यहाँ पर पार्टी जो ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, इसाकदार भी उनके हमरा हैं और उनको जो कोर्ट रूम नंबर 1 का जो मेन जो बिल्कुल सामने वाला जो बेंच है वहाँ पर उनकी सीट है और उन्होंने जो है मफलर भी आज दोबारा पहना हुआ है, जबकि मास्क भी उन्होंने ब्लैक कलर का लगाया हुआ है। तो इस वक्त जो नवाज शरीफ जो हैं वो तमाम जो यहाँ पर पार्टी और यहाँ पर मौजूद हैं उनको सलाम भी कर मुसाफा कर रही हैं। ये सारा सूरत हाल है। और ठीक है अवैस, जैसे कि आपने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, तो क्या जजेस भी आना शुरू हो गए हैं कोर्ट रूम में? बाबर से बात कर लेते हैं। बाबर, आप बताइएगा, वैसे हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ तो पहुंच चुके हैं, क्या जजेस भी आना शुरू हो गए हैं कोर्ट रूम के अंदर? अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और दीगर जो मरकजी क़यादत है उसके हमरा कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में जो है वो जजेस की जानिब से जजेस की आमद होगी और चंद लम्हात में समाअत का जो है वो बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। आपको ये बताता चलूँ कि जो हाई कोर्ट का सिक्योरिटी डेकोरम है उसके मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे से अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ने अपनी गाड़ियों से उतर कर मरकजी दरवाजे को पैदल क्रॉस किया है और मरकजी दरवाजे से कोर्ट रूम तक जो है वो पैदल गए हैं लीगी रहनुमाओं के हमरा। जो लीगी रहनुमाओं की बड़ी जो तादाद है वो भी इस वक्त कोर्ट रूम के बाहर मौजूद है। कोर्ट रूम के अंदर सीधे सिर्फ जो मखसूस अफराद थे जिनकी लिस्ट फराहम की गई थी नून लीग की जानिब से, उन्हीं को दाखिले की इजाज़त थी क्योंकि पिछली समाज में धक्कम तेल हुई थी। लिहाजा जो तयशुदा क़यादत का जो लिस्ट फराहम की गई थी उसके मुताबिक ही क़यादत इस वक्त मौजूद है। इसहाक डार हैं, कैप्टन रिटायर्ड अफसर हैं और दीगर जो मरकजी रहनुमा हैं सब नवाज शरीफ के साथ मौजूद है। सबसे आगे जो बेंचेज हैं उन पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो विराजमान हैं और कुछ ही देर में जो है चंद लम्हात में समाअत का आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फरजाना, आपसे जानना चाहेंगे कि मनाज़र हम 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जैसे मियां नवाज शरीफ अंदर आ रहे हैं तो उनके इर्द गिर्द काफ़ी बड़ा क्राउड हम देख रहे हैं इस फुटेज में। तो आप वहाँ पर मौजूद हैं, आप बताइएगा कि कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और उनको कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं? जैसा कि दोनों साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लीगी कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद है जो यहाँ देखने में आ रही है और इनको कंट्रोल करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। एफसी एहलकार भी तैनात किए गए थे जबकि सिविल कपड़ों में मलबूस भी पुलिस एहलकार यहाँ पर है। लेकिन जो लीगी कारकुनान हैं और जो नून लीग के वकला हैं उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि इनको कंट्रोल किया जा सके, लेकिन जैसे ही नवाज शरीफ यहाँ पर पहुँचे लीगी कारकुनान की जानिब से अच्छे खासी नारेबाजी भी देखने में आई और इन कारकुनान में खवातीन की भी बड़ी तादाद शामिल है जो ना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर पहुंचे। लीगी कारकुनान के अलावा जो लीगी क़यादत है वो भी यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में नजर आई है। फैसलाबाद, सियालकोट में जो दीगर इलाके हैं वहाँ के भी जो MNAs और MPs थे नून लीग के वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इसके अलावा वो तमाम तर सियासी शख्सियात जिनमें साथ शामिल हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं वो भी यहाँ पर नजर आए, जबकि मरियम औरंगजेब भी उनके हमरा थी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो इस वक्त कोर्ट रूम में पहुंच चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट के बाहर जो लीगी कारकुनान हैं वो अभी तक ताहाल बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और वक्फे वक्फे से उनकी जानिब से नारेबाजी भी देखने में आ रही है। चूंकि ये रेड जोन का इलाका है, यूं तो यहाँ पर दफा 144 नाफिज और पुलिस की जानिब से भरपूर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह की वो बदनज़मी देखने में ना आए जो गुज़िश्ता समाअत पर देखने में आई थी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई के बाकायदा तौर पर 2 वाक़यात भी सामने आए थे और 2 ग्रुपों ने आपस में ठीक है फरजाना, आपका बहुत शुक्रिया। अवैस और बाबर हमें डिटेल्स बता रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस मुतालिक आपसे मजीद भी डिटेल्स लेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील का मामला सुप्रीम कोर्ट ने इत्तलाए आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। सर्कुलर के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के खिलाफ अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जा सकेगी। वकिला और साइलिन को ताकीद की जाती है कि अपील इंट्रा कोर्ट अपील के तौर पर दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का सेक्शन 5 आर्टिकल 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक देता है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले के बाद अपील का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इत्लाए आम के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जारी है। खसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नज़ीर ताड़ड़ पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत जारी है। खसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरखास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नज़ीर ताड़ड़ पेश हुए। मियाँ नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत जारी है। हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून का मुतालिया किया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं रेफरेंस वापस लेने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा रोस्टरम पर इस वक्त मौजूद हैं और अपने दलाइल भी दे रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत इस वक्त जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत इस वक्त जारी है। खसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ की जानिब से अमजद परवेज एडवोकेट और आजम नज़ीर ताड़ड़ पेश हुए हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा रोस्टरम पर मौजूद हैं। हमने दोनों अपीलों के हक़ाइक़ और कानून का मुताला किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से इस वक्त दलाइल दिए जा रहे हैं। पहले इवनफील्ड केस से मुतालिक बताना चाहता हूँ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की जानिब से ये कहा गया है। अहम समाअत इस वक्त जारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा, समाअत का आगाज़ हो चुका है और इस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल नैब दलाइल दे रहे हैं। जी बिल्कुल, समाअत का जो है वो आगाज़ हो चुका है और इस पे जो दलाइल शुरू होने से कबल जो है आजम नज़ीर ताड़ड़ ने जो कमरा अदालत में जो इको का जो मसला था, जो कि सुनने में जो है प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि नई बिल्डिंग बनी है, तो कमरा अदालत रूम नंबर 1 में इको का साउंड इको का बहुत मसला है। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं आमिर फारूक, उन्होंने भी इस बात की तईद की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये मसला है और कमरा अदालत में पीछे जो बैठे वाले अफराद हैं उनको सुनने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आजम नज़ीर ताड़ड़ ने मजीद ये बात करते हुए कहा कि इसको अगर ठीक कर लिया जाए तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने इस हवाले से एक एक्सपर्ट की खिदमत जो है वो मांगी है और जल्द इस मसले को हल कर लिया जाएगा। उसके जो मिस रेफरेंस में जो सजा खिलाफ अपीलें जो है बहाल करने की दरख्वास्तों पर जो समाअत का जो है वो आगाज हो चुका है और इसमें जो है नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की जो दरख्वास्त पर भी समाअत जो है वो जारी है। खसूसी डिवीजन बेंच तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत कर रहा है और इस पे आजम नज़ीर ताड़ड़ जो है वो दलाइल भी जो है वो दे रहे हैं। रेफरेंस वापस देने की गुंजाइश सिर्फ उस सूरत में है जब फैसला ना सुनाया गया हो। प्रोसिक्यूटर जनरल ने भी इस पे जो है अपनी इनपुट दी है और हमने दोनों अपीलों के हकूक और कानून का मुताला किया है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने मजीद कहा कि पहले एवनफील्ड केस से मुतालिक बताना चाहता हूँ। मैं एवनफील्ड केस के हक़ाइक़ की समरी अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दायर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ नैब को रेफरेंस दायर करने का कहा है बल्कि GIT भी बनाई। प्रोसिक्यूटर जनरल का मजीद कहना था कि GIT ने दोनों रेफरेंसेस जो है बनाए जिनकी अपीलें इस अदालत के सामने ज़ेर समाअत हैं। उस पर एहतसाब अदालत ने केसेस पर फैसला सुनाया तो इसके खिलाफ अपीलें दायर की गई। जो प्रोसिक्यूटर जनरल का मजीद कहना था कि रेफरेंस वापस देने की गुंजाइश ट्रायल के दौरान मौजूद थी। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर फैसले के खिलाफ अपील एडमिट हो जाए तो केस वापस नहीं हो सकता। अगर अपील दायर हो जाए तो इसका फैसला करना होता है। अदम पैरवी पर भी खारिज नहीं हो सकती। अगर इन अपीलों को बहाल करेंगे तो फिर इन्हें मेरिट्स पर दलाइल सुनकर फैसला करना होगा। एवनफील्ड रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में दायर किया गया था। प्रोसिक्यूटर जनरल का मजीद कहना था कि चेयरमैन नैब की मंजूरी से रेफरेंस जो है वो दायर किए गए और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर GIT भी कायम की गई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल ने जो है उनकी तरफ से जो है वो रोस्टम पर दलाइल जो है वो जारी हैं और दूसरी तरफ जो लीगल टीम है नवाज शरीफ की वो भी बैठी हुई है और जिस तरह आजम नज़ीर ताड़ड़ और अमजद परवेज जो हैं वो आज तमाम तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त कमरा अदालत में जो है तमाम की नजरें जो हैं वो जजेस हजरात की तरफ हैं, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ हैं और उसके साथ जो है पिन ड्रॉप साइलेंस है और इसमें अब जो है वो दलाइल का जो है इस केस की समाअत जो है वो जारी है और प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो अपनी जो दलाइल जैसे कि आपने कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से कहा गया था कि अगर फैसले के बाद अपील एडमिट हो जाए तो फिर वापस नहीं हो सकती और अपील दायर होने पर इसका फैसला करना होता है, तो इस पर क्या कोई जजेस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे?
بالکل ابھی ان کے جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ جاری ہیں اور انہوں نے پروسیکیوٹر جنرل نے کہا کہ احتساب عدالت نے کیسز پر فیصلہ سنایا تو اس کے خلاف اپیلیں جو ہے وہ دائر کی گئی تھیں، لیکن ریفرنس واپس لینے کی گنجائش ٹرائل کے دوران موجود ہوتی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر فیصلے کے خلاف اپیل ایڈمٹ ہو جائے تو کیس ٹھیک ہے اویس، اس متعلق مزید بھی ڈیٹیلز آپ سے لیں گے۔ فی الوقت کے لیے بہت شکریہ آپ کا، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 24۔